I welcome you all in the next video tutorial of HB Board of Department Examination Paper 1 Financial Administration. Dear all, in this video we are going to cover a previously asked question, and this question was asked in different examination of HIPAA also. The question was, write the instruction, what are the instruction which have to be followed where the assumption of charge involve the responsibility of cash and store. तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा अगर आपको स्टोर के संबंधित या कैश के संबंधित कोई भी चार्ज दिया जाए तो this is for educational purposes only. There is no commercialization involved, and please refer to standard rule and regulation in case of any deviation. Let me show you 2009 HPFR document, and under chapter number 10, miscellaneous subjects are there. Chapter number 10, there are different rules, like rule 171 deals with transfer of charge, and it is under the clause 2 of rule 171, that is in case in which the transfer of charge involve the assumption of responsibility for cash and stores, and the following instruction shall be observed. चलिए पढ़ते हैं इन instructions को. Number 1, the cash book or the implicit account shall be closed on the date of transfer, and a note be recorded in it with the signatures of both the relieved and the relieving government servant, showing the cash and the implicit balances and the number of unused check or the receipt books, if any, handed over and received by them respectively. ये पूरा इंश्योर किया जाएगा कि हैंडेड ओवर टेकन ओवर किसको किया गया है, क्या उनके साइन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो रिलीव हो रहा है, जिसके पास चार्ज जा रहा है, और कोई भी अनयूज्ड चेक या अनयूज्ड रिसिप्ट बुक के बारे में भी पूरा विवरण दिया गया है. उसमें नोट लगाया जाएगा कि किस डेट को ये कैश बुक को पूरा का पूरा लास्ट तक टैली किया गया है, वरना उसमें जिस इंसान को चार्ज जा रहा है दिक्कत हो सकती है. तो इंश्योर करें कि कैश बुक प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो और वो द कैश बुक अकाउंट शैल बी क्लोज्ड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, पूरा पूरा क्लोज किया गया हो, उसमें सिग्नेचर्स हों दोनों अथॉरिटीज के जिन्हें चार्ज जाएगा और जो चार्ज मुक्त हो रहे हैं. Second point, the relieving government servant shall bring to the notice anything irregular or objectionable in the conduct of business that may have come officially to his notice. He shall examine the count, weigh and measure the articles as applicable in order to test the accuracy of the returns. अगर कोई भी त्रुटि पाई गई तो अगर कोई लगता है आपको चार्ज ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज गलत है, एकदम से अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नोटिस में लाइए और हर एक आइटम को, मान लीजिए आपको कोई स्टोर से संबंधित कोई आइटम्स दी गई, आप उसको काउंट करिए, रिकाउंटिंग करवाइए, लेकिन पूरा इंश्योर करने के बाद ही आपको चार्ज ग्रहण करना है. In the case of any sudden casualty occurring or any emergent necessity arising for a government servant to relinquish his charge, the next senior officer of the department present shall take the charge. When the person who takes the charge is not a gazetted government servant, he shall at once report the circumstances to his nearest department superior and obtain the order as to the cash in hand if any. अगर उस अवस्था में अगर किसी भी कारणवश किसी सरकारी कर्मचारी को रिलिंग्विश कर दिया गया, चार्ज मुक्त कर दिया गया और उससे संबंधित अगर चार्ज किसी नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट को सर्वेंट को दे दिया गया जो कि नॉन गेस्टेड है, उस अवस्था में एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जिसमें उसका आवश्यक है अपने नियरेस्ट डिपार्टमेंट को या अपने डिपार्टमेंट को सूचित करना कि किन कारणवश उसको चार्ज दिया गया है. उनकी परमिशन के बारे में परमिशन भी ली जाएगी उस अवस्था में. एक बार दोबारा से पढ़िए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. कैश बुक, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कैश बुक आपको देखना है कि कब क्लोज की गई है, क्या कोई पेंडिंग कैश पेंडिंग चेक्स तो नहीं है, वो ध्यान रखें. और अगर कोई भी त्रुटि पाई गई आपको वो काउंट करना है, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नोटिस में उसको संदर्भ में लेकर आना है. और इन केस ऑफ सडन कैजुअलिटी अकरिंग, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रिलिंक्विश करता है चार्ज को तो वो नेक्स्ट सुपीरियर को दिया जाएगा. और एक अवस्था और देखी है, व्हेन द पर्सन हु टेक द चार्ज इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, देन ही शैल एट वंस रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू हिज नियरेस्ट डिपार्टमेंट सुपीरियर. वो बिल्कुल वो बताएगा चार्ज देने से पहले कि किस अवस्था में सर्कमस्टेंस क्या थे, उनको चार्ज लेना पड़ गया. एंड ऑब्टेन ऑर्डर, और ऑर्डर भी लेके आएगा. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर नंबर 10 आपको याद रखना है, HPFR 2009 का रूल नंबर 171 के सेकंड क्लोज के अंदर ये चीज दी गई. तो थैंक यू ऑल फॉर वेल्युएबल टाइम.